Yeah. Hi Khushi. Hi Conqueror. Hi Rahul. Hi Chandni. Hi Earth. Hi Aditi. Hi Isha. Hi Darshini. Hi Krishna. Hi Girish. Hi Milan. Hi Pratik. Hi Rituja. Hi Bablu. Hi Vatsal. Hi Harsh. Hi Amit. Hi Archit. Hi Vranda. Welcome everyone to the class. Hi Virendra. Good morning, everyone. Hi, Naman. Hi, Ravi. Hi, Pratiksha. Hi, Lakshmi. Yeah, good morning, everyone. So, guys, hope you are ready for the class. Yeah. Hi, Dia. Okay. So, as you know, that the percentages is a very important topic. है ना? Hi, Srishti. Hi, Abhinav. Hi, Priyanka. Hi, Dipanshu. Hi, Cat Learner. Hi, Divya. Hi, Sai. चलो guys, let's start. स्टार्ट करते हैं भाई पढ़ाई अपनी। ठीक है। आज हमको क्या पढ़ना है? परसेंटेज। सो परसेंटेज इज शॉर्टकट्स फॉर कैट। सो गाइस, मैं आपको परसेंटेज का वो पार्ट आज पढ़ाऊंगा जो है तो वेरी इजी, बट स्टूडेंट्स को लगता है टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है। तो मतलब बहुत आसान होगा देखने में, मगर टाइम कंज्यूमिंग है, ये लगता है स्टूडेंट्स को। तो मेरा काम क्या होगा आज? I will make this very easy, non time consuming. Means आप ये सोच लो कि you will be able to do this whatever question you were able to do it normally in 1 minute. Because of today's class, you will be able to do it in 10 seconds. So जमीन आसमान का फर्क पड़ने वाला है, right? Hi विशाल, hi रामाकृष्णा, hi शुभम, hi तन्वी, hi कुमार, hi दिव्यज्योति, hi साबित, hi साई किशोर. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सो गाइज, जैसा कि मैंने कहा, नहीं ब्रेकफास्ट नहीं किया कृष्णा आज मैंने। मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं एक्सरसाइज कर सकता था योगा, या फिर मैं ब्रेकफास्ट कर सकता था। तो मैंने कहा यार योगा कर लेते हैं, है ना, और बनाना खा के काम चला लेते हैं. सो आई एट अ बनाना इन द ब्रेकफास्ट एंड आई डिड एक्सरसाइज एंड योगा एंड आई हैव माय ब्रेकफास्ट आफ्टर द क्लास. ओके. हाय आर्यन, हाय राहुल. Sir, you should eat 30 minutes after waking up. Yeah, Aditi, usually I do that. I'm very careful about health. So as soon as I wake up, I drank hot water and all for immunity. Then after that, I eat something and then I do exercise and all. This is my routine. Yeah. Hi Naya. Hi Shivam. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. काफी लोग आ गए हैं पढ़ाई करने के लिए सुबह सुबह, तो सबके टाइम का यूज करते हैं. बात काफी कर लिया, पढ़ाई भी करते हैं, राइट? या आदिति, आई एम हैविंग दैट ऑल्सो. या दिवज्योति, अगर सेट थ्योरी की क्लास तभी करना आज अगर आपका सेट थ्योरी बहुत अच्छा हो पहले से. वेरी गुड कैट लर्नर. हाय कुना, हाय विशाल, हाय चैतन्य, हाय स्वर्णिका. चलो गाइस पढ़ाई शुरू करते हैं. काफी लोग आ गए हैं और स्टार्ट करने का वक्त हो गया है. बातें तो खत्म नहीं होंगी, जितनी मर्जी कर लो, पर पढ़ाई करना भी आवश्यक है बैलेंस करने के लिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द स्टडीज गाइस. या सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू. रेडियस of a circle increases by
20%. By what percent does its area increase? So guys, very easy question. शुरुआत आसान क्वेश्चन से ही करनी चाहिए ना. So let's start with the easy question, but the way we will solve it will be even shorter than this. So first question is very easy and a confidence building question for all of you. I want 100% people to do it right. So your options are 20%, 40%, 22% or 44%. These are the option, guys. Hi Kartike, hi Sangek, hi Ritesh. Good morning everyone. Hi Dipjyoti. Yeah, should we start the poll, guys? Poll शुरू करना है. Chalo guys, let's start the poll. I think everyone has got sufficient time to start to try this question. And the area is equal to pi r square. That is the formula used here for a circle, right? Okay guys, your time starts now. Very nice guys, 74% of you got it right, but 20% of you are in the trap of my options. Yeah, great, doesn't matter, but that's fine that you tried well. Hi Amit, hi Kajal. So guys, let's do this question. How do you do this question? So as you know, area is pi r square. So radius increases by 20%. 20%, if anything increases by 20%, I can say that it becomes 1.20 times, right? Because x plus x into 20 by 100. If you solve it, you will get 1.20x. So if anything increases by 20%, it becomes 1.20 times. So your new area will be pi into 1.20 r whole square. This will be the new area, guys. Yeah. So you will make it like a dash is equal to pi into 1.44 r square. Because 12 square is 144, the world knows. So I can say that the new area is 1.44 times the old area, that is pi r square. So can I say that the new area is 1.44 times the old area? So if anything becomes 1.44 times, which means that it increases by 44%. So your answer is 44%. Clear guys? I have done with a very basic way. बहुत ही आसान simple तरीके से किया है. Because I am explaining it, that's why it is taking time. But if I will not explain it, I will directly do it. It will not take time. How will a student do it in exam? I'll tell you that also. The formula you already know. So radius becomes 1.2 r. So square of radius is the area, which becomes 1.44 r square. So area becomes 1.44 times, so it increases by 44%. That is how you are supposed to do this question in the paper. So guys, this is the shortcut. This is how you have to do. ये फॉर्मूला लिखने का काम नहीं करना वहां पे पेपर में, टाइम खराब हो जाएगा. ओके चांदनी, यू कैन रिफ्रेश. यूजुअली मेरी साइड से नहीं होता है, मतलब बहुत कम होता है. जस्ट रिफ्रेश योर स्क्रीन चांदनी. सो व्हेन यू आर डूइंग इट इन एग्जाम, यू डू इट विद अ शॉर्टकट. That radius becomes 1.20 times, so square of radius will become 1.44 times. So area is square of radius, so area becomes 1.44 times, so area increases by 44%. So guys, if you do it this way, you will be able to get the answer in 10 seconds. So don't write steps, do half the work mentally. This will save your time. Fine guys, very nice. Hi Priyad. So guys, I am going for the question number 2 for the day. And the question number 2
is also similar to what we have done. So, but again, slightly different. The radius of a circle becomes 3 times. By what percent does the area increase? By what percent does the area increase? That's the question. Okay. So guys, easy question, but again, how do you do it in 10 seconds? That's important. The challenge is to do the question in 10 seconds. 10 seconds challenge. And take the challenge for yourself. राइट 10 सेकंड में आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो वो इंपॉर्टेंट है. करने को तो कोई भी कर लेगा इस क्वेश्चन को, इतना मुश्किल थोड़ी है. बट 10 सेकेंड्स में विदाउट पेन कोई करेगा, दैट विल बी रियली गुड. सो गाइज लेट्स सी इफ यू आर एबल टू डू इट और नॉट. आई विल गिव यू ऑप्शंस. $300%, 900%, 200%, and 800%. These are the options. Okay guys, I hope you have done it. Very nice guys, very nice. Great guys, I think we can start with the poll now. I have given you sufficient time to try. Let's have a poll. Your time starts now. Now so many people got it wrong. See, only 25% people got it right. Isn't it surprising for you? Surprised to see the answer. Yeah guys, that is what I was saying. यही कह रहा था मैं. Yeah, no problem. Okay, Divjyoti. Okay, let me explain guys. Radius becomes 3 times. So square of radius will become 9 times. Now I'll tell you a very good funda for this. Please try to understand what I'm saying. It's very, very important and you won't find it anywhere in the books. So please listen to what I'm telling you. It's very, very important guys. So मैं आपको दोनों भाषाओं में समझाऊंगा. I will explain this in Hindi as well as English. Because it is very important to go deep inside your brain. That's very important. So guys, radius is 100% of itself initially. Anything in the world is 100% of itself. You are also 100% of yourself. Right? Your mobile is also 100% of itself. Anything is 100% of itself. Now, when it becomes 3 times, so can I say it becomes 300% of itself? Radius was 100% of itself. Then it became 3 times. So it became 300% of itself. So if anything becomes 300 3 times, so it means that the increment is 200% in that case. The increment is 200% in that case. Fine. So similarly for this case, the radius square is 100% of itself. It becomes 9 times, so it becomes 900% of itself. So the increment is 800%. That is why your answer will be option D. So guys, this is a shortcut. You can do this question in 10 seconds. Right? And correctly. That also correctly. Yeah.
या इनाया, यस राइट। या बिना पेन के होगा ये बिल्कुल एकदम कार्तिकेय। देखो रेडियस हिंदी में समझो, हिंदी में समझा रहा हूं। रेडियस 3 गुना हो गया तो 100% था अपने आप का, तो 300% हो गया। तो कोई चीज अगर 100 से 300 हो गई तो 200 बढ़ी। ऐसे ही रेडियस का स्क्वायर 100 से 900 हो गया, तो स्क्वायर ऑफ रेडियस फ्रॉम 100 बिकेम 900। सो इट मींस द इंक्रीमेंट इज 800। 100 से कोई चीज अगर 900 हो जाएगी तो मतलब 800 बढ़ेगी ना। सो इंक्रीमेंट इन द रेडियस स्क्वायर विल बी 800%, hence the area will increase। area, you know the area, what is area of circle? It's pi r square। So radius square means the area। Fine guys, that is how we'll do it। Hi Pragati, hi Divya, hi Karan। सो गाइस दैट्स ऑल। मतलब ये शॉर्टकट है यार, बहुत बढ़िया शॉर्टकट है ये। आप हवा में क्वेश्चन करोगे, हवा में। या आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस, लेट मी सी इफ यू आर एबल टू डू इट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 3 इज volume of a sphere, volume of a sphere increases by volume of a sphere increases by 800%। okay, by what percent does its radius increase? आपको बताना है उसका रेडियस कितना बढ़ेगा। एंड फॉर योर काइंड रेफरेंस लेट मी गिव यू द फॉर्मूला इज 4/3 pi r cube। The volume of sphere, the formula is 4/3 pi r cube. This is what I'm giving you for your reference. Okay. So volume of a sphere increases by 800%. By what percent does its radius increase? So guys, let me give you 4 options again. A, B, C, D are the 4 options. Let's see how many of you get it right. These are the options, guys. 100%, 200%, 300%, 400%. These are the options. Okay. Question is very simple, guys. But what is the problem? The problem is you have to do it very fast, without pen, and that to correct. So problem is the 10 seconds challenge. I am giving you a 10 seconds challenge. So you have to do it in 10 seconds. Yeah. Hi Akash. Hi Sanjeet. Hi Vishal. आसान क्वेश्चन है भाई, जल्दी करो। हाय आदित्य। Very nice, guys. So many of you have done it. Wonderful to see that, guys. Wonderful. You have done it. Okay, guys, let me start the poll. ओके वेट गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यहां पे 700% होना चाहिए, तब सही होगा ये क्वेश्चन, नहीं तो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। दिस शुड बी 700%। वैसे मेरे को लग रहा था कि आप बता दोगे, पर आपने बताया नहीं अभी तक। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर increases by 700%। Yeah, otherwise you will get the answer in points which will not be there in the options। फाइन गाइस। या प्रयाद, किसी ने बताया नहीं मेरे को लग रहा था कोई बताएगा आप में से। Volume of a sphere increases by 700%. By what percent does the radius increase? Do it fast, guys. Yes, Vishal. Yes. I hope you will get a beautiful answer now.
Okay, guys, let's do the options now. Yeah, Vishal. Yeah, Vishal, that's fine. Your time starts now. एक ऑप्शन नन ऑफ दीज देना भी बहुत जरूरी होता है. Very nice, guys. But 52% got it right. 30, so many got it wrong, huh? Only 50% got it right. Oh, very good, Krishna. Okay, guys, let me explain this to you. Okay, देखो, volume is 4/3 pi r cube, so volume is cube of the radius. So cube of the radius increases by 700%. So if it is 100% of itself and it increases by 700, it becomes 800% of itself. So can I say that the cube of the radius has become 8 times? The cube of radius has become 8 times. So it means the radius will become 2 times. So radius will become 2r. Cube of radius becomes 8 times. So 2 का cube ही तो 8 होता है ना. तो मतलब radius becomes how much? 2 times. तो radius अगर 2 times हो जाता है तो कोई चीज अपने आप का 100% होती है, it becomes 200% of itself. So the increment is 100%. That's it, guys. So your answer is 100%. That's why the answer will be option number B. Clear है? Got it? Yes or no? या वेरी नाइस गाइस. बस ये छोटा सा शॉर्टकट है यार, ये बहुत बढ़िया काम करता है. दिस इज अ फैबुलस शॉर्टकट गाइस. इट वर्क्स वंडरफुली इन द पेपर. नंबर लाने के लिए बहुत बढ़िया शॉर्टकट है और क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा कभी आपका. ये भी पक्की बात है कि कभी गलत भी नहीं होगा. शॉर्टकट भी बढ़िया है और आपका कभी गलत भी नहीं होगा. ठीक है ना. 100 था, 700 बढ़ा 800 हो गया. 8 गुना 100 से 800 हो गया, 8 गुना हो गया. रेडियस डबल हो गया, 100 से 200 हो गया, 100% बढ़ा. सिंपल, ऐसे करना है 10 सेकेंड्स. फाइन गाइस. चलो गाइस, तो प्रैक्टिस कर लेना, but try to do this without pen in 10 seconds the way we have learned it today. Okay, I hope you will do this. Now guys, one more question. There are three, A, B and C are three people, okay, who work in a company. They got different increments. A got an increment of 9%, 11% and 10%. He got three increments. B got an increment of 5%, 20%, sorry 5%, 21% and 9%. ज्यादा हो गया इसका, तो इतना इंक्रीमेंट थोड़ी देना है. 5%, 15% or 10%. There is a person C who got increment of 8%, 13% and 9%. Right? So these are the three increments received by three different people. So question is, who got the maximum salary increment? The maximum salary increment. सबसे ज्यादा सैलरी किसकी बढ़ी है आपको ये बताना है. Who got the maximum salary increment among A, B and C? Right? I'll give you option guys. और ये भी बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको सॉल्यूशन देखने के बाद. ऑप्शंस आर A, B, C and all are equal. Right? So these are the question is that ABC got three successive salary increments. ABC got three successive salary increments. Who got the maximum salary increment?
This is given to you, right? Please solve this question, guys. It's very interesting also. Again, we have a 10 seconds challenge over this question. Can anyone do this in 10 seconds? That's very important. Very nice, Tanvi. Very nice, Krishna. ओके, सौबित, प्रतीक्षा ने भी कर लिया है, स्वर्णिका ने भी कर लिया है. शुड इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल सैलरी? सो क्वेश्चन वो है ही नहीं ना दीपांशु. क्वेश्चन है इंक्रीमेंट किसको ज्यादा मिला. हु गॉट द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीमेंट, दैट इज द क्वेश्चन. नॉट एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट, मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीमेंट. Who got the maximum percentage increment? Fine, guys. Great, guys. So many of you have done it. Chalo, guys, let's start the poll. So, guys, your time starts now. Please put your answer in the poll. Oh, so many people got it wrong. Only 19% people got it right. Okay, Chaitanya, very good, Chaitanya. देखो भाई, और मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड्स में आएगा, 10 सेकंड्स में आएगा. राइट गाइस, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, I will tell you a method that you will get the answer in only 10 seconds. That is why it is called 10 second challenge. So I hope you are ready, guys. Are you ready? Okay, guys. Okay. Let me tell you the shortcut. The shortcut is that all of them add to give you 30. Means 9 plus 11 plus 10 is how much? 30. So all of them add to give you 30. As you can see, all of them add to give you 30 now. Yeah. So whenever this is the case, the one which is closest to equal distribution has maximum percentage increment. याद रखो, जो मतलब बंटवारा अगर 30 है ना तो बंटवारा करना पड़ेगा. द वन विच इज क्लोजेस्ट टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीमेंट. सो इसका मतलब ये है कि अगर 10 प्लस 10 प्लस 10 होता, दिस विल हैव ऑलवेज द मैक्सिमम इंक्रीमेंट. if sum is 30, if the sum is 30, this will always have maximum percentage increment. Fine. So it means which is closest to 10 10 10, you have to see this now. Which is closest to 10 10 10? 9 10 11 is the closest to 10 10 10 equal distribution. So that is why this will have maximum increment. Got it? That's it, guys. छोटा सा फंडा है. हाय तितली, हाय रॉबिन. कोई बात नहीं रॉबिन. या कैट लर्नर, बाय. यस मिलन, इट इज अ वंडरफुल फंडा. अगर आपको ये आता है तो आप बहुत टाइम बचा सकते हो पेपर में, और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप बहुत टाइम खराब कर सकते हो पेपर में. फाइन गाइस, तो जब भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट करना है और सम बराबर है, सो इट मींस द वन विच इज इक्वल टू और क्लोजेस्ट टू द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट is the highest increment always. Please remember this funda, guys. You will be able to solve such questions in 10 seconds. What is the base of funda? It is experimentation and learning. संजीत, आप वैल्यू डाल के देखो और करके देखो आप, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा. एक वो कहावत है ना हिंदी में
मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। तो तीनों को सॉल्व करके देखो आप, या कोई और एग्जांपल लेके देखो, राइट? छोटा एग्जांपल लेके देखो, आपको समझ आ जाएगा। जैसे 10 + 10 20, 15 + 5 20, ये वाला एग्जांपल लेके देखो आप, या कोई भी एग्जांपल लेके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ये एक्सपीरियंस से सीख कर आपको बता रहा हूं मैं। आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस एंड आई एम शेयरिंग विद यू। फाइन गाइस, चलो गाइस, let's do it. The next question, I hope you're ready for the next one. Next question के लिए I hope you're ready guys. Okay, now guys, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। We will do a standard question एंड बट इजी वाला, एक आसानी क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आई एम डूइंग द बेसिक्स एंड द बेसिक लेवल स्टडीज इन द स्पेशल क्लासेस। सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग इजी क्वेश्चंस, नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। बट हाँ, जो कैट के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर ही छुपे होते हैं, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज। हाय वंदना, ठीक है। चलो तो एक और करते हैं क्वेश्चन। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल increases by 25%. By what percent does its breadth decrease if area remains same? Right guys? तो क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 25%. By what percent does the breadth decrease if area remains same? Sides are not given, the Jyoti. You will get 4 options guys. 25%, 20%, 16.66%, and cannot be determined. Cannot be determined. Fine guys, you have 4 options. फॉर्मूला वही है भाई, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला यही होता है ना, राइट गाइस? सो अगेन गाइस, this question also comes in the 10 seconds challenge. You should be able to solve the question in 10 seconds. Again, the category is 10 seconds challenge. You should be able to get the answer in 10 seconds. Okay, Vishal. No problem, Vishal. I will discuss that also. Yeah, Krishna, area is constant. Absolutely, area is constant. Okay. Lassi Khajur Singh, you were very much required at the time of morning. Huh? Come, come, come. Chocolate boy, good morning. ओके गाइस, पॉल करें। विशाल, जो भी आपका आंसर आता है यहां पे मत डालो, ठीक है? उससे ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सभी लोग वही आंसर मार देते हैं जो किसी ने डाला होता है, और कई बार सबका सही भी हो जाता है और सबका गलत भी हो जाता है। तो लर्निंग इज हैम्पर्ड, सो डोंट पुट द आंसर हियर।
Okay, guys, let's go for the ball. Your time starts now. Very nice. 65% got it right. चलो गाइस, चलो 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 करते हैं. ठीक है, देखो. चलो गाइस, लेट मी टेल यू द शॉर्टकट. यू नो दैट एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है ना. क्षेत्रफल हिंदी में बोलूं? मजा आ जाएगा सुनकर. एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं. तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं. सो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और आपको बताना है कि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. राइट. उर्दू उर्दू. आप तकल्लुफ मत उठाइए, हम इसको उर्दू में भी समझा सकते हैं. उर्दू में समझाना वाजिब नहीं है. चलो गाइस, लेट्स डू इट. जोक्स अपार्ट. 25% इंक्रीमेंट है, दैट इज इक्वल टू 1/4 इन फ्रैक्शन. सो एनीथिंग इंक्रीजेस बाय 25% मींस इंक्रीजेस बाय 1/4. सो अगर कोई भी चीज 1/4 बढ़ जाएगी तो दैट विल बिकम 5/4. ओके. इफ एनीथिंग इंक्रीजेस बाय 1/4 it becomes 5/4. So in the next step I can write that the area will be 5/4 times the length into something times the breadth. I don't know what will come here, but guys, just think of this. If your area remains same, it means that the product remains same. So if this becomes 5/4, this one will definitely become 4/5 na. Yes, क्योंकि तभी तो मल्टीप्लाई करके सेम आएगा. ए का एरिया सेम रहेगा. तो अगर ये 5/4 हो गया है तो इसको 4/5 होना पड़ेगा, तभी एरिया सेम रहेगा. ठीक है. तो आपकी जो ब्रेड्थ है वो 1 से 4/5 हो गई है. सो इट मीन्स द डिक्रीमेंट इन इट इज 1 minus 4/5 which is equal to 1/5 which is equal to 20%. That's all guys. सो क्योंकि समझाना पड़ा तो इतने स्टेप्स बताए हैं. अदरवाइज यू कैन डू दिस विदाउट पेन वेरी इजीली. ऐसे ही हो जाएगा हवा में. राइट गाइस. सो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो लेंथ इंक्रीजेस बाय 25% मींस 1/4. देखो लेंथ 1/4 बढ़ गई तो 1 से 1/4 बढ़ गई तो 5/4 हो गई. लेंथ 5/4 हो गई तो ब्रेड्थ 5/4 हो जाएगी. ब्रेड्थ 5/4 हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी. और कोई चीज अगर 4/5 हो जाती है तो 1 minus 4/5 करके 1/5 घट जाती है. और 1/5 होता है 20%. खत्म. हिंदी में समझा दिया. राइट गाइस. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. इजी. ग्रेट गाइस. आपको मालूम है मैं डेली क्लास लेने, अभी अर्थमेटिक की क्लास 7 दिन चलेंगी और बेसिक्स होंगे इसमें. जैसे अभी हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं. नो आई गिव यू अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आंसर. व्हाट विल बी 35% ऑफ what will be 35% of 268? That is the question guys. So very simple question. Changing my track. Let me give you a very easy question guys. These are the options guys. I hope you're ready with your answers.
एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू गिव यू टाइम फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन। इसको देने के लिए टाइम की जरूरत तो नहीं है ना। चलो गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड स्वर्णिका, गुड जॉब, great guys, 85% got it right till now. Waiting for more people to answer. अभी तक 40। हाँ, ट्रैक ही चेंज कर दिया मैंने। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। सो इसमें सीखने वाली बात यह है कि अगर कभी भी आपको ऐसा करना है, सो यू राइट इट एज 25% प्लस 10%. So 25% of a number is 1/4. 1/4 of the number will be how much? 67. 25% क्या होता है फ्रैक्शन में? 10% क्या होता है? 1/10. और 1/10 of this number will be how much? 26.8. When you add it, you will get 93.8. Guys, this is the challenge. This is the trick. यहाँ पर ये छोटी सी ट्रिक थी। 25% है तो 1/4 करना है, 10% है तो 1/10 करना है। तो 1/4 of the number plus 1/10 of the number is equal to the answer. That is the best way of doing it. Fine guys. Okay guys, बहुत आसान क्वेश्चन करें ना, ट्रैक चेंज करना जरूरी होता है। वन मोर इजी क्वेश्चन लाइक दिस, एक और करेंगे ऐसा ही करेंगे, बट इस बार उल्टा होगा, डिवाइड करना होगा आपको, आप घबरा जाओगे। 135 डिनोमिनेटर में है और ऊपर है 31। कितना परसेंट होगा बताना है और अप्रॉक्स आंसर बताना है। ओके, सो क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, कर सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, हाय जानवी, हाय आराध्य। चलो guys, the options are there in front of you. You have to tell me the approximate answer. Very nice guys, your time starts now. I won't give you time for such questions guys. They are very easy but they have a shortcut with them. काफी लोगों ने गलत कर दिया भाई इसको। 20 मतलब खाली 59%, 55% सही है अभी तक। अप्रोक्सीमेट करना था पर इतना अप्रोक्सीमेट थोड़ी करना था। इतना अप्रोक्सीमेट नहीं करना था कि गलती हो जाए। चलो गाइस, लेट्स डिस्कस। ये काफी लोगों का गलत हो गया, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। गाइस, देयर इज अ शॉर्टकट फॉर दिस। 10% नीचे वाला जो है ना, इसका 10% क्या होगा आप मेरे को बताओ। इसका 10% होगा 13.5। सो इसका मतलब 20% क्या होगा इसका? दैट विल बी 27। ये बात समझ में आती है? तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। 31 कैन बी रिटन एज 27 प्लस 4। नाउ नीचे दोनों के 135 है और यहां पर भी 135 है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, तो साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज 20%, दिस इज 20%। वी नो दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक। सो नीचे वाले का 1% क्या होगा? 1.35। सो 1.35 का ये 3 टाइम्स है, और सो 3% विल बी हाउ मच? 4.05। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3%। सो द आंसर इज 23% गाइस, दैट्स ऑल। सो आपको ऐसे करना है और विदाउट पेन हो जाएगा ये। दिस इज पॉसिबल विदाउट पेन, दिस कैन बी डन विदाउट पेन इन 10 सेकेंड्स, बट आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिकॉज सी, अगर आप ये सीख लोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। क्यों फायदा होगा?
व्हाट हैपेंड? राहुल क्या हुआ? मेरी आवाज से डर गए क्या? सो गाइस यू हैव टू लर्न इट, राइट? इको हो रहा है, अच्छा। रिफ्रेश करके देखो, कई बार रिफ्रेश करके इको भाग जाता है। चलो गाइस, इसको ट्राई करना, आपको खुद भी करना पड़ेगा। ये अभी आपको हो सकता है ना आया हो समझ, ये पहली बार में समझ भी नहीं आता है जो मैंने बताया है। बट गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा मेथड है जो विदाउट पेन 10 सेकेंड्स में आप ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सो काइंडली प्रैक्टिस दिस। इफ अगर समझ आ गया बहुत बढ़िया बात है, समझ नहीं आया क्लास के बाद फिर ट्राई करना, अटक जाते हो तो रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब मैं आपको एक टफ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। दिस इज अ कैट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डू अ कैट क्वेश्चन विच इज अ टफ क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ भी नहीं, डरो मत। हाँ, कुछ लोग डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। नहीं रॉबिन, जो मैंने बताया ये बहुत बेहतरीन मेथड है। इट इज वंडरफुल मेथड, सो डोंट गो फॉर अदर मेथड्स। इसी को सीखने की कोशिश करो, आप जल्दी कर लोगे। ठीक है, चलो गाइस, सो लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑफ कैट। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर increases by 700%. By what percent does its surface area increase? Okay, so guys this is a cat question. तो जो हमने आज पढ़ाए है तो उसी के बेस पर ही, और फॉर्मूला बता देता हूं आपको। वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। सो दीज आर द फॉर्मूलाज। अगर आप भूल गए हैं तो मैंने आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, अब ये शिकायत नहीं होनी चाहिए सर फॉर्मूले की वजह से नहीं हुआ। दीज आर दी ऑप्शन गाइस। वेरी नाइस नमन। सही होना चाहिए, करना इंपॉर्टेंट नहीं है। एज आई टोल्ड यू गाइस दिस इज अ कैट क्वेश्चन। मतलब जो हमने पढ़ा था उसके बेस पर कैट में ऐसे लेवल का क्वेश्चन आता है, जैसा हमने पढ़ा था उसके हिसाब से। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। ओके प्रगति। नहीं, फॉर्मूला पेपर में नहीं गिवन होता, मैं अपने छात्रों की मदद कर देता हूं। दिस इज अ हिंट, आई एम गिविंग यू इट एज अ हिंट। एग्जाम में हिंट थोड़ी आते हैं। चलो गाइस पॉल करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाय विश्वास। 65% got it right till now. Waiting for more answer, guys. Very nice, Vishal. Okay. Finally, 65% people got it right. Now, guys, देखो जो हमने आज क्या सीखा है। वॉल्यूम का मतलब रेडियस का क्यूब। रेडियस का क्यूब 700 बढ़ गया है ना? तो रेडियस कितना बढ़ेगा और रेडियस का स्क्वायर कितना बढ़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है। सो इफ इट इज वॉज 100% ऑफ इट सेल्फ, it increases by 700%, it becomes 800% of itself.
So guys, I hope you can see this, that it is becoming 8 times. So radius will become 2 times and square of radius will become 4 times. So square of radius from 100% will become 400%, right? So कोई चीज अगर 400% हो गई है तो बढ़ेगी कितनी? 300%. So guys, your answer will be 300%, option C. Absolutely. Fine? Yeah guys. तो आई थिंक समझ आ गया होगा आपको ये रेडियस का क्यूब 700% बढ़ गया, मतलब 100 था 700 बढ़ गया 800 हो गया, यानी कि 8 गुना हो गया. तो रेडियस डबल होगा. अगर रेडियस का क्यूब 8 टाइम्स हुआ तो रेडियस डबल हो गया. और सरफेस एरिया निकालना है तो वो रेडियस ऑफ स्क्वायर होता है, तो रेडियस का स्क्वायर होगा 4 गुना. सो 8 2 4. सो रेडियस का स्क्वायर 4 गुना, तो 100% से 400% हो गया. तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? 300% का इंक्रीमेंट हुआ. खत्म काम. सी आ गया आंसर. फाइन गाइस, I hope you enjoyed this. But again guys, cat question but done in only 10 seconds. 10 second challenge. हमारा 10 second challenge आज बरकरार रहा पूरी क्लास में. हमने every question that we have done in the class, every question we did it on only in 10 seconds. Right guys? So मतलब पढ़ाई करने का तरीका अगर अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर सकते हैं, है ना? ये समझ में आ गया. ठीक है. और गाइस अच्छी बात ये भी है कि मैं आपकी जो फ्री क्लासेस हैं, या इसका दूसरा नाम है स्पेशल क्लास, वी कॉल इट एज अ स्पेशल क्लास ऑन एन अकेडमी. सो ये एक स्पेशल क्लास और फ्री क्लास थी जैसा आप जानते हैं. और इस पूरे हफ्ते ये आपका बेस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है. इट इज गुड फॉर बेस बिल्डिंग. अगर आपको किसी भी टॉपिक का बेस बनाना है तो आप ये स्पेशल क्लासेस कर सकते हैं. इट्स वेरी गुड फॉर बेस बिल्डिंग. और डेली क्लास लूंगा मैं अब. टुमारो वेडनेसडे आई हैव 2 क्लासेस, 10 AM and 8 PM. थर्सडे I have a class at 10 AM. Saturday I have a class at 10 AM. Sunday I have a class, पता नहीं कितने बजे प्लान कर दी, भूल गया टाइम में इसका. ठीक है. आई थिंक जल्दी लूंगा मैं, शायद 8 बजे 8:30 बजे 8:30 AM, बिकॉज मॉक टेस्ट होता है ना उस दिन. मंडे अगेन 10 AM. सो गाइज दिस इज द शेड्यूल ऑफ माई क्लासेस. मैं पूरा अर्थमेटिक का बेसिक करा रहा हूं. यहां पर होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. यहां पर होगा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट. यहां पर टॉपिक होगा भूल गया नाम, तेरे सारे याद भी नहीं रहते ना कि कौन सा है. उल्टा शुरू करता हूं. लास्ट में टाइम एंड वर्क होगा. यहां पे टाइम स्पीड डिस्टेंस होगा. यहां पे मिक्सचर्स होगा. याद आ गया? हाँ अब याद आ गया. यहां पे रेशियोज होगा. राइट गाइस? तो यानी कि पूरा अर्थमेटिक, फुल अर्थमेटिक आई एम गिविंग यू इन फ्री क्लासेस. दिस इज फुल अर्थमेटिक बट द बेसिक पार्ट. So 7 classes, including today's 7 classes, and your entire basics of arithmetic will be there with you, right? और आपने अगर आज एंजॉय किया है तो शायद आप ऐसे ही एंजॉय करेंगे. राइट गाइस? तो मैंने अपना शेड्यूल आपसे शेयर किया है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज गाइस. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये आपके पास रहे, क्लास के बाद भी आपके पास रहे. फाइन गाइस, चलो अब मैं आपको बताता हूं, अनाउंसमेंट करता हूं अपने प्लस कोर्स के बारे में. ठीक है? अर्थमेटिक का मैं प्लस कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूं गाइस. जैसा आप जानते हैं आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग द प्लस कोर्स ऑफ अर्थमेटिक. राइट? सो वो कब हो रहा है? ये रहा भाई, अब हो रहा है. सो दिस इज द कोर्स आई एम लॉन्चिंग. मतलब ये फ्री क्लासेस में बेस बना लो और फिर प्लस कोर्स ज्वाइन करो. 18 मई से स्टार्ट हो रहा है. 18th of May it's starting. The time is 9:30 PM and the days will be Monday to Friday. Almost daily class होगी. सैटरडे संडे में नंबर सिस्टम चलता है ना, तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग अर्थमेटिक करेंगे. फाइन गाइस? कंप्लीट अर्थमेटिक मतलब पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क सारे टॉपिक मिलाकर. विद विश्वास व्हाट्सएप लिंक शेयर करना अलाउड नहीं है हमको.
आप अनअकैडमी के ऐप के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को मैसेज डाल सकते हैं। यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज थ्रू अनअकैडमी ऐप। सेट थ्योरी कौन कर रहा? रात 7:30 बजे है, 7:30 PM। फाइन, आप मेरा शेड्यूल देख सकते हैं। 7:30 PM आई हैव अ सेट थ्योरी क्लास। इट विल बी अ वेरी एडवांस लेवल क्लास, सो सोच समझ के आना। ठीक है। सो गाइस, ये हो गया हमारा कंप्लीट शॉर्टकट कोर्स ऑन अर्थमेटिक। और आपको पता ही है ये वाला चल रहा है ऑलरेडी, कैट 2017 का डिस्कशन चल रहा है ना, पेपर डिस्कशन। दिस इज गोइंग ऑन गोइंग। मैं उम्मीद करता हूं ऑल ऑफ यू शुड अटेंड इट, ऑल शुड डू दिस कोर्स। बस क्या फर्क पड़ेगा, आपको हो सकता है समझ में कम आए, बट फिर भी ये जरूर समझ में आ जाएगा कि कैट का पेपर कैसा होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। राइट, सो एवरीवन शुड अटेंड दिस कोर्स। आई एम पुटिंग अ स्टार ओवर इट। राइट, एवरीवन शुड अटेंड दिस कोर्स, बिकॉज कैट पेपर कैसा होता है और वहां शॉर्टकट लगते हैं नहीं लगते हैं, यू विल अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स देयर। सो एवरीवन शुड अटेंड दिस कोर्स गाइस। ओके, नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन प्लस? कितने लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं बताओ। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, तब तक आप ये बताओ कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं। पॉल रिजल्ट चाहिए या पॉल करा लूं? Guys, this is my introduction. My name is Praveen Tyagi, electronics engineer plus MBA. I am लखनऊ से भी मैनेजमेंट किया है, 22 साल से पढ़ा रहा हूँ, 16 साल से कैट पढ़ा रहा हूँ, किताबें भी लिखता हूँ, कैट स्कोर भी ठीक ठाक है, और दिल्ली में बेस्ट फैकल्टी अवार्ड करियर लॉन्चर दिल्ली में मिला है मेरे को 7 बार। 2017 और 2018 में I was the faculty who generated the highest feedback in entire Delhi region. And Unacademy, I have joined an academy 5 months back. 5 महीने से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, और गाइज मेरा ऑल इंडिया रैंक इज 3 इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। और एक और रैंकिंग होती है कितने लोग मेरी क्लास लाइव अटेंड करते हैं, तो उसमें मेरी रैंकिंग 2 है। माई रैंक ऑन अनअकैडमी इज रैंक 2 इन टर्म्स ऑफ लाइव लर्निंग मिनट्स। फाइन गाइस, दिस इज अबाउट मी, मेरे बारे में जानकारी थी। या विशाल, थैंक यू। स्पेशल क्लास टाइम बताया ना श्रेया, आप थोड़ा लेट हो गए शायद, अभी दोबारा दिखाता हूं, रुक जाओ जरा। तो गाइस, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना है, आप मेरा कोड यूज करिए, यूज कोड PT Sir 10 फॉर अ 10% डिस्काउंट एंड ऑल्सो मेक मी फील प्राउड। यानी कि मेरा नाम बढ़ेगा कंपनी में तो डेफिनेटली मेरे को अच्छा लगेगा। गाइज लेट मी टेल यू, अगर आप कैट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, देन यू शुड टेक 2 year सब्सक्रिप्शन इन दैट केस, एंड दैट कॉस्ट अराउंड 19,000, 18-19 हजार के बीच में पड़ेगा कुछ आपको शायद, वो अराउंड, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। ओके, अगर आप कैट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2020, then you should take 1 year subscription. That is what I will recommend. Why? Because you have to cover CAT, ZAT, other management exams and the interview. मतलब आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी कराऊंगा ना मैं, तो तीनों की तैयारी कवर करने के लिए आपको 1 साल वाला लेना चाहिए। ये आपको पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 16,000 का, ठीक है। बट आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड लगाने के बाद आपको ये 16,000 का पड़ेगा, ठीक है गाइस। ओके, एंड अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप क्या 2020 दे रहे हैं, देयर इज अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इन केस, मतलब जबरदस्ती नहीं तो इन दैट केस आई विल रिकमेंड कि आप 3 months वाला लेकर भी काम चला सकते हो। 3 month वाला ले लो, काम चल जाएगा, मतलब बढ़िया तो 1 साल वाला ही रहेगा, बट आपको कॉस्ट 8,000 रुपए पड़ेगी। फाइन गाइस, सो 3 इंपॉर्टेंट बात हो गई हमारी। उसके बाद सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा अनअकैडमी पे, अगर आप मेरी क्लास डेली करोगे 9:30 PM पे, यानी कि डेली आप मेरी क्लास 1 घंटा अटेंड करो, सिर्फ 1 घंटा, तो 3 months में आपका क्वांट का सिलेबस खत्म करा दूंगा मैं। 3 months क्वांट सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। सो इफ यू अटेंड माई क्लासेस डेली एट 9:30 PM, ओनली 1 hour, यू विल बी एबल टू फिनिश द क्वांट सिलेबस इन 3 months। और LRDI के लिए इफ यू अटेंड माई क्लासेस ऑन वीकेंड्स, सैटरडे संडे भी अगर आप क्लास अटेंड कर लोगे ना, फॉर LRDI एंड वर्बल ऑल्सो VARC,
मैं VARC नहीं पढ़ाता हूं, बट मैं LRDI पढ़ाता हूं, तो आपका उसी में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, LRDI एंड VARC ऑन वीकेंड्स, बाकी दिन सिर्फ 1 घंटा क्लास करना है 9:30 बजे, दैट्स इट। पार्टनरशिप ले सकते हैं क्या? देखो ऑफिशियली तो मैं नहीं कह सकता कि आप क्या करें, बट गाइस मुझे इतना पता है कि कुछ लोगों ने करा हुआ है ऐसे, मतलब 2 लोगों ने मिलकर शेयर किया है, बट एक क्लास में एक बार में एक ही बंदा लॉग इन कर सकता है। तो अगर आप दोनों जने एक ही टाइम पे क्लास करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, एक पढ़ेगा एक रिकॉर्डिंग देखेगा फिर उसकी, ऐसा होता है उस केस में। सो दैट इज हाउ पीपल डू, राइट। स्पीड कैसे बढ़ेगी गौरव? मैं ना क्लासेस लेने वाला हूं, स्पीड डेवलपमेंट क्लासेस, स्पेशल क्लासेस होंगी मेरी। 21 से मैंने प्लान किया हुआ है स्पीड डेवलपमेंट क्लासेस। तो वो क्लासेस अगर आप करोगे ना, स्पेशल क्लास ही होगी, फ्री क्लास ही होगी, उसमें मैं स्पीड बढ़ाने की टेक्निक्स बताऊंगा, हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड, आई विल टेल दैट, राइट गाइस। और आप में से जो लोग लेट हो गए हैं और अभी क्लास में नहीं आ पाए टाइम पे, इस सेशन की रिकॉर्डिंग 2 घंटे बाद अवेलेबल होगी, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन आफ्टर 2 आवर्स। फाइन गाइस, ग्रेट गाइस, बहुत बढ़िया, मैंने आपको जानकारी दे दी। ये रिकमेंडेड प्रोग्राम है, ये वाला ज्वाइन कर लो, बढ़िया रहेगा। बट गाइस, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये फीस तभी मिलेगी ना जब डिस्काउंट कोड यूज करोगे PT सर 10, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यूज कोड PT सर 10 फॉर 10% डिस्काउंट। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो अनअकैडमी के थ्रू आप कर सकते हो, यू कैन राइट अ मैसेज टू मी थ्रू अनअकैडमी ऐप and I will definitely respond to your message in few hours. Okay, and most important thing of the class, next special class tomorrow 10 a.m. next special class tomorrow 10 a.m. फ्री क्लास अगली 10 बजे है। अगर आप मेरा शेड्यूल देखना चाहते हैं ना फ्री क्लासेस का, तो आप मेरे को सर्च कर सकते हैं, यू कैन सर्च माई नेम इज प्रवीण त्यागी, सर्च माई नेम ऑन अनअकैडमी, राइट। अगर आप मेरा नाम सर्च करोगे अनअकैडमी पे तो आप मेरा पूरी क्लासेस का शेड्यूल देख पाओगे कि मेरी कौन सी क्लास कब हो रही है, और जो आपको पसंद है आप अपनी पसंद की क्लास अटेंड कर सकते हो। ये पहली इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट क्लास कल 10 बजे है, अदरवाइज आप मेरी सारी क्लासेस यहां पे देख सकते हैं। दूसरी और लास्ट अनाउंसमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको नहीं भूलनी है, अनअकैडमी ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई को स्पीड अप मिलेगा और आपको बहुत इंप्रूवमेंट अपने अंदर महसूस होगा। विद इन 1 month you will find lot of changes in your preparation if you join this. Those students who have already joined are already telling me this कि yes sir, बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। So guys, if you want to take the advantage, आप ज्वाइन करिए। आपके अगर अनअकैडमी की वजह से आपका परसेंटाइल थोड़ा भी ज्यादा आ गया ना, तो जिंदगी भर की कमाई जोड़ू तो करोड़ों रुपए का फर्क पड़ेगा आपकी पढ़ाई कमाई में। मतलब बिकॉज ऑफ गुड स्कोर इन कैट, योर सैलरी पैकेज एंड योर कॉलेज कैन बी बेटर, hence which can make crores of difference, amount that you will earn in your whole life will have a difference of crores because you got a good percentile. So guys, don't think before investing. बहुत सारे लोग सोचते हैं यार एक कोचिंग में तो पहले पैसे दे दिए, दूसरी में कैसे दूं। डोंट थिंक, जो पैसे कहीं गए वो गए, अगर कुछ अच्छा मिल रहा है ले लो, सोचो मत, ठीक है ना, क्योंकि आपका करियर और पूरा लाइफ डिपेंड करता है कि आप कैसा स्कोर करते हैं। सो गाइस, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो फटाफट ले लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। या नहीं, हाँ कार्तिकेय, आपको कार्तिकेय को 1 month हुआ है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है एक स्टूडेंट, 1 month हुआ है लेकिन पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है, क्वेश्चन करते वक्त पता चलता है, राइट। सो दिस इज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस, ही इज माय स्टूडेंट इन द प्लस क्लास, ही हैज शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द लास्ट बात, गाइस यूज कोड PT सर 10, इसको कहीं नोट कर लो या इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये कोड जरूर यूज करना अगर अनअकैडमी ज्वाइन करनी है तो। आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट और मेरे को मिलेगा नाम, मेरे को नाम चाहिए ना कितने स्टूडेंट ने मेरी वजह से ज्वाइन किया। फाइन गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। या गौरव, GDPI की प्रिपरेशन भी मैं कराता हूं, मैंने 18 साल बिजनेस किया है और आई हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर फॉर 18 years अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टीचर। सो बिकॉज ऑफ दैट
I am able to develop people's personality in the personality development program called GDPI preparation. So definitely I will prepare you for the GDPI also. Right, guys? Okay, thank you. Bye bye. See you in the next class.